Hello guys, all of you know that the pattern of the exam is changed now. Now they will not ask the questions according to unit wise, but they will ask the questions collectively from whole syllabus. So now I'm discussing the questions from first unit, the lengthy question. The first question is, what is duration? How is it calculated? And explain it with the help of important properties of duration. Then firstly, we will discuss the meaning of duration. Then duration is basically a measure of sensitivity. Sensitivity, all of you know that sensitivity means movement, changes in the price. If your security is more flexible or more fluctuative in nature regarding price, then you will consider that your security is more sensitive. Then in security, you will discuss the bonds or debt instrument. In debt instrument, you will consider debentures या फिर other fixed income securities of the government. And regarding changes in interest rate, then bond durations is changed according to time of maturity. That means maturity time, that means redemption time period will change, then duration also will change according to bond's maturity period. A bond duration is changed according to time of maturity. Then features of duration. First feature, it is the fundamental characteristics of a fixed income security, because if you want to invest in the fixed income security, then you have to better know about the duration, because on the basis of duration you will find out this investing in that particular security is more beneficial for you or not. Then second feature, a tool used in the assessment of the price volatility. Tool, that means techniques, is used in assessment. Assessment means evaluation of the price volatility. Volatility, all of you know that movement, changes, fluctuations in the price of the security. Then on the basis of duration, you will easily calculate your security is more volatile or less volatile, या फिर more fluctuative or less fluctuative in nature according to price. Then third feature, duration measures. That means duration calculates the sensitivity of the value fluctuation. Now in value, you will not discuss regarding price. Here value is according to the demand of the security. If security is more demanding in nature, then security is more valuable in nature. Then fourth feature, that is the general rule regarding while you will discuss about duration. Longer duration indicates the value of the bond will fall. That means duration is longer, then bonds value is decreases in nature. हाँ जी, now we will discuss the relationship between duration and bond price. Here you will see that इंक्रीजिंग ड्यूरेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, और ऑन वाइस वर्सा बॉन्ड्स प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे. दैट मीन्स आप यहाँ देख रहे हो कि ड्यूरेशन एंड इंटरेस्ट रेट में पॉजिटिव रिलेशन है, बट ड्यूरेशन एंड बॉन्ड्स प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है. यहाँ आप पॉजिटिव कंसिडर करोगे, यहाँ आप नेगेटिव रिलेशन देखोगे. हाँ जी, नेक्स्ट फीचर, ड्यूरेशन इज कॉमनली यूज्ड इन पोर्टफोलियो. ऑल ऑफ यू नो डैट पोर्टफोलियो क्या होता है. पोर्टफोलियो क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार. पोर्टफोलियो, वाइल वी विल इन्वेस्ट इन मोर देन वन सिक्योरिटी, या फिर वी विल इन्वेस्ट इन अ बंडल ऑफ सिक्योरिटी, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज पोर्टफोलियो. देन ड्यूरेशन को आप कॉमनली यूज करते हैं पोर्टफोलियो एंड रिस्क मैनेजमेंट में. ऑब्वियसली if you are investing in a security, firstly an investor will bothered about the risk in that particular security. Then portfolio is the main technique for the management of risk, because if you are investing in more than one security, then loss of one security you can easily neutralize with the profit of the another security. Then on the basis of that you will easily manage the risk. Last, now sixth feature,
duration only reveals that means only disclose one side of fixed income security. अब one side क्यों? On the basis of duration you can judge, ठीक है, you can easily judge price sensitivity, movement of security, fluctuations in security, but साथ साथ आपको डिस्कस करना होगा, साथ साथ आपको कंसिडर करना होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स ऑल्सो. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अदर फैक्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज मूवमेंट्स, your competitors, your competitor of your security. On the basis of that, your demand supply forces, on the basis of that you can judge the while you will invest in a particular security or not. On the basis of duration only, you cannot easily judge, you can not only take decisions regarding investing in a particular security. हाँ जी, next general rule. Here are two rules regarding duration. First rule, every 1% change in interest rate, change 1% up down भी हो सकता है and 1% up भी हो सकता है. A bond's price will change 1% in opposite direction. That means अगर बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट में डाउन हो रही हैं 1% डिक्रीज हो रही हैं, देन बॉन्ड प्राइस 1% अप हो जाएगा. और वाइस वर्सा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रही हैं तो बॉन्ड प्राइस 1% डाउन हो जाएगा. हाँ जी, सेकंड जनरल रूल, इफ बॉन्ड प्राइस हैज ए ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, बॉन्ड प्राइस का मेच्योरिटी पीरियड क्या है, 5 ईयर्स है, एंड इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज बाय 1%, इंटरेस्ट रेट क्या हो रही है, 1% इंक्रीज हो रही है. अब अभी आपने यहाँ रिलेशन फर्स्ट रूल में पढ़ा कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा, ऑलवेज यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, डिक्रीज होगा. तो यहाँ पर क्या है, सेकंड रूल में अगर ड्यूरेशन 5 ईयर्स की है, इंटरेस्ट रेट 1% से इंक्रीज है, तो बॉन्ड प्राइस ऑब्वियसली ड्रॉप होगा, बट ड्रॉप बाय 5% अप्रोक्सीमेटली. 5%, here you will consider the duration period. 1% multiply 5 years is equal to 5% changes या 5% drop down in the value of the bond. ठीक है, these are the two general rules regarding durations measurement. हाँ जी, next third, factors affecting duration. There are two factors, they will affect the duration. First basic factor, time to maturity. टाइम टू मेच्योरिटी दैट मीन्स मेच्योरिटी पीरियड. यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन लेके चलेंगे मेच्योरिटी पीरियड का. हाँ जी, लॉन्गर मेच्योरिटी देन हायर ड्यूरेशन, पॉजिटिव देन ग्रेटर इंटरेस्ट रेट, अगेन पॉजिटिव, दैट दे विल वर्क इन सेम डायरेक्शन. दैट मीन्स ड्यूरेशन, मेच्योरिटी पीरियड लॉन्ग है तो ड्यूरेशन भी क्या होगी, हाई होगी. ड्यूरेशन हाई होगी तो इंटरेस्ट रेट पे जो रिस्क है वो भी आपके लिए ग्रेटर हो जाएगा. दैट मीन इंटरेस्ट रेट पे जो आपकी को मैनेज करना आपके लिए मोर डिफिकल्ट टास्क होगा. सेम वाइस वर्सा, शॉर्टर मेच्योरिटी पीरियड देन लोअर ड्यूरेशन अपोजिट एंड देन लेस इंटरेस्ट रेट, दैट मीन्स दे विल फ्लो इन सेम डायरेक्शन. अगर पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव है तो तीनों नेगेटिव हो जाएंगे. सेकेंड फैक्टर्स, कूपन रेट, हायर कूपन रेट देन लोअर यील्ड. अब यहाँ कूपन रेट मीन्स ये नहीं है कि बॉन्ड पे जो आप रिसीव कर रहे हो कूपन रेट मीन्स विच यू विल पे टू एक्सटर्नल पर्सन या टू आउटसाइडर्स, वो होगी यहाँ पर कूपन रेट हायर है, दैट मीन यू हैव टू पे द हायर इंटरेस्ट रेट, दैट मीन हायर कूपन रेट ऑन बॉन्ड्स. देन यील्ड क्या होगा यहाँ पर, लोअर होगा, दैट मीन्स आपकी इनकम क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली लो हो जाएगी. एक्सपेंसेस बढ़ गए, कूपन रेट बढ़ी, पेमेंट आप ज़्यादा कर रहे हो तो आपकी इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी उन बॉन्ड्स पे. सेकंड फंडा, अगर लोअर कूपन रेट लो है, यू हैव टू पे द लेस मनी टू द एक्सटर्नल पार्टी, देन हायर यील्ड, इनकम आपकी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी बॉन्ड्स पे. तो यहाँ कूपन रेट दैट इज इंटरेस्ट रेट. इन बॉन्ड्स के केसेज में आपको पता है इंटरेस्ट रेट को आप कूपन रेट से डिनोट करते हैं, एंड इन केसेज ऑफ बॉन्ड्स यील्ड इज रिलेटेड टू द इनकम या मनी विच यू विल रिसीव while you will invest in particular type of bonds. ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स, दे विल इफेक्ट द ड्यूरेशन. टू फैक्टर्स थे, टाइम टू मेच्योरिटी एंड कूपन रेट. हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूरेशन. फर्स्ट प्रॉपर्टी, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड्स ऑलवेज विल बी लेस देन और इक्वल टू मेच्योरिटी. दैट मीन बॉन्ड्स की ड्यूरेशन क्या होगी, या तो मेच्योरिटी की इक्वल होगी या उससे लेस होगी, कभी ज़्यादा नहीं होगी. सेकेंड केस, ड्यूरेशन इंक्रीजेज then obviously maturity period also increases.
एंड वाइस वर्सा भी केस लो, ड्यूरेशन डिक्रीज होगी तो मेच्योरिटी पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, थर्ड केस फॉर जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, that particular type of bonds in which you will not receive any interest, that means in which you will not receive any coupon। हम जी, अब जीरो कूपन बॉन्ड में बेनिफिट क्या होगा आपको? बेनिफिट होगा इनकी फेस वैल्यू में, दैट मीन्स पास्ट में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था, एज्यूम करो कुछ बॉन्ड्स की फेस वैल्यू जब आपने इन्वेस्ट किया 100 थी, देन फ्यूचर में जब आप उसे रिडीम कर रहे हो या पे कर आप सेल कर रहे हो, देन उनकी वैल्यू होगी मेच्योरिटी टाइम पीरियड पे 250। दो जो ये अमाउंट आया 150 का, ये 150 आपको बेनिफिट होगा जीरो कूपन बॉन्ड के केसेस में। बट ध्यान रखना, इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड यू विल नॉट रिसीव एनी इंटरेस्ट, एनी कूपन रेट। हाँ जी, इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड ड्यूरेशन ऑलवेज मेच्योरिटी की इक्वल होती है। एंड फोर्थ केस कूपन पेइंग बॉन्ड, कूपन पेइंग, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो, रिसीव नहीं कर रहे हो। कूपन पेइंग बॉन्ड के केस में ड्यूरेशन ऑलवेज मेच्योरिटी से कम होती है, लेस देन मेच्योरिटी। हाँ जी, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, हायर कूपन रेट इज इक्वल टू लोअर ड्यूरेशन। कूपन रेट हायर है तो ड्यूरेशन लोअर होगी। अगेन अब यहाँ पर आप रिसीव नहीं कर रहे, ऑब्वियसली अगर आप रिसीव करते कूपन रेट हायर होती तो ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती, आप लॉन्ग टाइम के लिए सिक्योरिटी को अपने पास रखना चाहते। बट ये कूपन रेट रिगार्डिंग पेइंग टू एक्सटर्नल पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी को हायर, दैट मीन यू हैव टू पे द मोर मनी टू एक्सटर्नल पार्टी, देन आप क्या सोचोगे? लोअर ड्यूरेशन, दैट मीन उसे लेस टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखना चाहोगे। अब यहाँ रिलेट कर दो, लोअर ड्यूरेशन मीन्स लोअर या फिर लेस मेच्योरिटी पीरियड। हाँ जी, नेक्स्ट सिक्स केस, लोअर ड्यूरेशन, लोअर कूपन रेट इज इक्वल टू फर्स्टली ड्यूरेशन। इस केस में क्या होगा? इंक्रीजेज होती है, ड्यूरेशन बढ़ती है, देन मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज होगी, उसके बाद ये डिक्रीज होने लगती है। लोअर कूपन रेट होगी तो पहले क्या होगा? ड्यूरेशन इंक्रीज होगी, इंक्रीजेज एट द मैक्सिमम लेवल, आफ्टर दैट इट विल डिक्रीज। हाँ जी, अब एक बार रिव्यू लेते हैं। ड्यूरेशन, duration that is the measure of sensitivity relating to the price of the bond or fluctuations, and features, first feature that is the fundamental characteristics है फिक्स इनकम सिक्योरिटी का। सेकेंड टूल है, यूज होता है जो प्राइस वॉलेटिलिटी में। थर्ड, इट मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशन। फोर्थ, जनरल यूल विच यू हैव टू अडोप्ट while you will take decision या while you will measure the duration। main general rule, longer duration then bond prices will fall, increase duration and interest rate पॉजिटिव हो जाएगी and bond price नेगेटिव हो जाएंगे। that means there is positive relation between duration and interest rate but negative relation between duration and bond price। फिफ्थ, ड्यूरेशन में आप कॉमनली यूज करते हैं पोर्टफोलियो एंड रिस्क मैनेजमेंट में। एंड लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन यू कैन ओनली मेजर द फिक्स इनकम ऑफ द सिक्योरिटी, बट you have to discuss, you have to bothered about external environment factors। हाँ जी, now general rules, two general rules। first rule, 1% change in interest rate, then 1% change in bond price but in opposite direction, not in same direction। second rule, if duration is 5 years, interest rate increases by 1%, तो फर्स्ट रूल को अडॉप्ट करोगे यहाँ तो बॉन्ड प्राइजेज विल फॉल हो जाएंगे, बट नॉट बाय 1% बट बाय 5%। 5% मीन्स 1% मल्टीप्लाई 5 years। फैक्टर्स, टू फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर, टाइम टू मेच्योरिटी, पॉजिटिव रिलेशन थ्री थिंग्स में, मेच्योरिटी, ड्यूरेशन एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क में। लॉन्गर मेच्योरिटी, higher duration and greater interest rate risk, shorter maturity, lower duration and less interest rate risk। and opposite direction होगा कूपन रेट एंड yield में, higher coupon rate, lower yield, lower coupon rate, higher yield। next properties, there are 6 properties of the duration। first property, duration of bond will always be less than or equal to maturity। duration increases, maturity increases, duration decreases, maturity
decreases. For zero coupon bond, duration is equal to maturity, and for coupon paying bond, duration is less than maturity. Fifth property, higher duration, higher coupon rate, lower duration, and lower coupon rate, duration higher यहाँ नहीं क्या होगी, duration increase होगी, but up to maximum level. After that, in that case also duration will decreases. ठीक है. अब आपका यहाँ पर एक टॉपिक रह गया इसी में, ड्यूरेशन में टाइप्स ऑफ द ड्यूरेशन या फिर हाउ इज इट कैलकुलेटेड. हाँ जी, वी विल डिस्कस टुमारो दिस पार्टिकुलर टॉपिक. थैंक यू.